Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. Guys, today I am going to teach you narration. Narration means it is a topic which is related to English grammar. So today I am going to teach you how to convert any sentence from direct speech to indirect speech. What is this direct speech and what is this indirect speech? I am going to tell you. Basically, what is the meaning of narration? Narration means to narrate. And it is the word originated from the word narrate. Okay, narrate means, or we can say to say something or to state something. Any statement, any assertion is called narration. So, what is narration? How it is converted from direct to indirect or indirect to direct? We are going to study today. So, without doing a further delay, let's move right into the topic. So, guys, what is this direct speech or what is this indirect speech? First of all, what is this term narration is? Narration is a word which is originated from a word narrate, to narrate something. To narrate means to say something, कुछ कहना, to state something, to assert something, to utter something. Okay, so narration is a word made from narrate. Narrate means कुछ कहना, कुछ कोई स्टेटमेंट कहना, कोई कथन कहना, हिंदी में हम कहते हैं. सो नरेशन. अब नरेशन टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होता है जिसमें हम डायरेक्ट नरेशन इज अ नरेशन इन विच we say something directly within inverted commas, right? And the statement which is said indirectly means the statement which is without inverted commas and is said in without in inverted commas is called indirect speech. Direct means whenever any audience or any speaker says sentence or expresses the sentence in the same words of the speaker is called direct statement. Like Reena said to me, I love you very much. यहाँ पे क्या है, जो रीना है स्पीकर है और ये किससे कह रही है, मी से कह रही है. क्या कह रही है, आई लव यू वेरी मच. ये जो आई लव यू वेरी मच जो स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है? बेसिकली ये रीना का स्टेटमेंट है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया गया है. क्लियर? नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है वेन एवर एनी ऑडियंस और स्पीकर, ओके, the statement of the speaker expresses indirectly. Indirectly means whenever the statement is said by something, the statement belongs to someone. Okay, like Reena told me that she loved me very much. ये indirect speech है. कैसे indirect speech है? देखिए, रीना ने मुझसे कहा कि I love you very much, कि वो आपसे बहुत प्यार करती है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रीना का था. कहा किससे? मी से कहा. यहाँ पे रीना जो है, ये मी जो है बता रहा है कि रीना ने मुझसे दैट शी लव्ड मी वेरी मच ये कहा. ठीक है, तो स्टेट दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? एक है डायरेक्टली कहा गया है, दूसरा इनडायरेक्टली कहा गया है. क्लियर? तो बेसिकली हमें इस नरेशन में करना क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगे, या तो डायरेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट में होगा. हमें उसको कन्वर्ट करना होगा. डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. देयर आर सेवरल रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. द वेरी फर्स्ट रूल इज वी हैव टू चेंज एनी सेंटेंस, any direct speech or any direct statement according to tense. According to tense. I love you very much. That means in which sentence, in which tense it is. It
is from the this verb we can recognize in which tense this sentence is. I love you very much. Love is a verb here. Okay, love means ये क्या है, this is in a first form, verb की first form में है. loved होता, अगर eds में ऐड होता तो ये क्या होता, सेकेंड फॉर्म में होता. तो रीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. बेसिकली जो टेंसेस का चेंजमेंट होता है इसमें वो कैसे होता है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा. दैट मीन्स अगर इज़ है तो वॉज हो जाएगा. ओके, इज़ एम आ रहा है तो वॉज वर हो जाएगा. अगर फर्स्ट फॉर्म में दिया है तो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा. अगर लव है तो लव्ड हो जाएगा. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट हो जाएगा. इज़ एम आर है वॉज वर हो जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यानी इज़ एम आर है तो वॉज वर हो जाएगा. और अगर सिंपल प्रेजेंट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो वो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा. देन अगर हैज़ हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यानी हैड हो जाएगा. अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा यानी हैड है. अगर हैड है तो किस में हो जाएगा, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अगर हैज़ हैव है, हैज़ हैव तो हैड हो जाएगा. क्लियर हो गई इतनी बात. देन अगर हमारे पास कोई मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, विल, शैल, वुड, कैन, विल, शैल और मे. ओके, ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये अपने पास्ट फॉर्म में चले जाएंगे. कैन है कुड हो जाएगा, विल है वुड हो जाएगा, शैल है शुड हो जाएगा, एंड मे है माइट हो जाएगा, शुड हो जाएगा. ओके, इतना क्लियर हो गया होगा. तो मॉडल वर्ब्स हैं तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है. तो पहले तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. दूसरा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है कि हमें पर्सन को चेंज करना होता है. किसको चेंज करना होता है, पर्सन को चेंज करना होता है. अब यहाँ पे जो आई है ये एक प्रोनाउन है, ये एक क्या है, प्रोनाउन है. आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. आई एंड वी ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं. ही, शी ये हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं. और यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. तो देयर इज़ अ रूल ऑफ चेंजिंग और changing the first person pronoun according to the persons. Like there is a rule called son, SON, 1 2 3, means whenever we find any sentence having first person will be changed according to subject. Whenever we find any subject in second form, second person, then it will be changing into object according to object. And then and when we will find third person, then it will be, there will be no change. S means subject, O means object, N means no change. Okay, तो ये चीज़ क्लियर हुई. जैसे कि रीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच. हियर आई इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो ये कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर यहाँ पे यू होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता. अगर यहाँ पे ही होता तो कोई भी चेंज नहीं होता. क्लियर हो गया. तो दैट मीन्स ये क्या है, पर्सन्स का चेंज होना है. पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, अब जैसे कि इसी स्टेटमेंट को हम चेंज करके देख लेते हैं. दो चीज़ें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी. एक टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना, दूसरा प्रोनाउंस के यानी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना.
तो रीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। हियर वी सी दैट सेड, तीसरी चीज़ हमें क्या समझनी है कि जो सेड टू है हमारा, सेड टू, इसको हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, अगर सिर्फ सेड है तो सेड रहता है ये, अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाता है, अगर सेज है, सेज टू, तो ये हो जाएगा टेल्स, अगर सिर्फ सेज है तो सिंपली सेज ही रहेगा। क्लियर? इफ वी विल फाइंड द क्वेश्चन, the interrogative statement in a sentence, we find interrogative statement, then we will do what, then we will change said to into asked. Clear? Okay, the third rule of changing these sentences into indirect is we have to remove this inverted commas. When we convert the sentence from direct to indirect, तब हमें क्या करना होगा कि इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होगा। तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, इफ़ या वेदर। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप। देन अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि स्टेटमेंट कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए, रीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, यानी कि रीना जो है, रीना एक स्टेटमेंट बता रही है, तो रीना ही स्पेसिफिकर है, रीना को रीना रखेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, रीना टोल्ड, देन मी को हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रीना टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट को लगाएंगे। फिर है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, जो कि हमारा सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड यू रूल ऑफ सम, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, रीना सब्जेक्ट है, तो रीना क्या है, एक गर्ल है, यूज़ होगा शी। देन अगर कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो वो सीधे सीधे सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, शी लव्ड यू। अब यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मी का मी आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो शी लव्ड मी वेरी मच। समझ आया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर हियर, किस किस तरीके के सेंटेंसेस नरेशन में मिलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस टाइप इज असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस होता है, इसको हम द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस येस और नो सेंस, येस या नो सेंस, यानी सिंपल सेंटेंस भी होगा इसमें और नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, दोनों सेंटेंसेस इस सेंटेंस के टाइप में मिलेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, रीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, ये क्या है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्यों असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें येस की बात की गई है, नो की बात नहीं की गई है। येस नो जहाँ पे मिलेगा हमें, वो हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल और नेगेटिव। अगर सिंपल है तो वो भी असर्टिव में आएगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो भी असर्टिव में आएगा। तो रीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, ये कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी नेक्स्ट, इसी में नेगेटिव जो सेंटेंसेस आते हैं वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉम सेड टू अभिनव आई डू नॉट हेल्प यू, आई डू नॉट, यहाँ पे क्या है, डू नॉट, नॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, टॉम सेड टू अभिनव आई डू नॉट लव यू। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे कर देंगे, चेंज भी करते चलते साथ में। टॉम है तो टॉम ही रहेगा, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अभिनव नेम है, चेंज नहीं होगा। देन आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आई टोल्ड यू कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा टॉम है, यानी कि एक
मेल जेंडर है तो ही हो जाएगा डू नॉट। डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट की। किसकी होती है? सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। चेंज हो जाएगी, डू की जगह क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। डू की जगह हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा? डिड। हेल्प यू, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए हेल्प यू। और यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अभिनव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? टॉम टोल्ड अभिनव दैट ही डिड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, हेल्प हिम। अब यहाँ पे डिड नॉट क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ क्या था? डू नॉट था। देन दैट क्यों लगाए गए? इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। इतना क्लियर हुआ। देन आते हैं सेकंड जो हमारा टाइप होता है नरेशन का। सेकंड हमारा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में व्हेन वी फाइंड एनी स्टेटमेंट आस्किंग अ क्वेश्चन एंड दैट विल एंड इन विद अ क्वेश्चन मार्क, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाइक ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट? तो ही सेड टू मी, सबसे पहले मैंने बताया कि जब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट ही आते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले, क्वेश्चन फॉर्म में जो सेंटेंसेस होंगे वो सिर्फ वही आएंगे। या तो वो विद WH होंगे या वो विदाउट WH होंगे। विदाउट WH मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, या मॉडल्स जो होते हैं उससे स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, वो हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज द सेंटेंस? अब सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है और आर से हमें समझ आ रहा है कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, या ये कह लो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? ही सेड टू मी। अब यहाँ पे जब ये चेंज होगा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा? ही सेड टू मी। सेड टू को अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? आस्क्ड कर दूंगी। देन मी ऑब्जेक्ट है इसका, ही आस्क्ड मी। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसको हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ होता है या वेदर का यूज़ होता है। देन यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या हो जाए? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्ट होता है आई। देन ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में इज एम आर है तो वॉज वर्ब हो जाएगा। इज एम आर है तो वॉज वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई के साथ में वॉज। देन अ स्टूडेंट, इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल बनाया, इसलिए हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक तो विदाउट WH आता है जो कि मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे? व्हाट आर यू डूइंग today? I said to my wife what are you doing today? Here what is a question word and this sentence is ending with interrogative mark, that is called interrogation mark or question mark. तो I said to my wife what are you doing today, ये interrogative sentence है। अब इसको interrogative sentence को कैसे चेंज करेंगे indirect speech में? आई सेड टू को क्या करेंगे? आस्क्ड में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। माई वाइफ हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में ये है इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है ये इसमें नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट नहीं लिखना है, इफ़ या वेदर नहीं लिखना है। डायरेक्टली क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, वॉट। देन आर यू डूइंग टुडे, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? यू, यानी सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई वाइफ ऑब्जेक्ट है यानी फीमेल जेंडर है, देन शी यूज़ हो जाएगा।
उसके बाद में आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज, पास्ट कंटिन्यूस वॉज, वॉट शी वॉज, देन डूइंग, डूइंग हमारा क्या है, वर्ब है। टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे, टुडे को क्या कर देंगे, अगर टुमारो है तो नेक्स्ट डे कर देंगे, और यस्टरडे है तो प्रीवियस डे कर देंगे, टुडे है तो दैट डे कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड टाइप जो है हमारा वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस शोज ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या शो करते हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू रोहन सिट डाउन, देर इज नो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ओके, सो ही सेड टू रोहन सिट डाउन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ही सेड टू रोहन सिट डाउन, मतलब डायरेक्टली एक स्टेटमेंट बोल दिया, तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान है, वो क्या करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस को शो करते हैं। तो ही सेड टू रोहन सिट डाउन। अब इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, इसमें सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हटा करके हम किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, डायरेक्टली वर्ब मिल जाता है। तो टू के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे डायरेक्टली। देख लीजिए, ही टोल्ड रोहन टू सिट डाउन, सिट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया और रोहन टू सिट डाउन डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव इम्परेटिव भी होते हैं। इम्परेटिव में कैसा होता है, नेगेटिव इम्परेटिव, मतलब डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट बॉदर मी, लाइक दीज स्टेटमेंट्स, दीज आर कॉल्ड इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लाइक शी सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। हियर शी सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। अब ये भी क्या है, सेम इसी फॉर्मूले से, इसी रूल से इसको भी चेंज किया जाएगा। शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी कर सकते हैं, या शी आस्क्ड मी इसलिए ही कर देंगे क्योंकि ये जो डू है हमारा, ये एक तरह से ये मान लो कि डू हमारा जो है क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें आस्क्ड लगा देंगे। सेंटेंस जो है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें आस्क्ड लगा देंगे। तो शी आस्क्ड मी, अब डोंट है यानी कि नॉट टू कर देंगे, टू नॉट टू नहीं कर सकते, क्या करेंगे, नॉट टू ओपन द डोर। वर्ब को हम चेंज कभी भी नहीं करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में मार्क दिस थिंग दैट वी हैव नॉट टू चेंज एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो शी आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। आस्क्ड क्यों लगाया है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एंड देन नॉट इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट टू ओपन द डोर। और टू आता है कब, इम्परेटिव सेंटेंस में टू कब आएगा, जब क्या होगा, वर्ब होगी, वर्ब के पहले टू आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। आई होप इतना समझ आया होगा। देन वन थिंग आई forgot to tell you, so I am telling you now। देखिए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच जो है, सॉरी, जो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, विच पार्ट ऑफ दैट डायरेक्ट स्पीच विच इज़ विद इन इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी, विच इज़ आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला स्टेटमेंट होता है, अंदर वाला भाग होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग
स्पीच जो है हमारा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला होता है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस का टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। विच टाइप ऑफ सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एक्सप्रेसेस विश और डिजायर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? विश और डिजायर। ठीक है, विश या डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग, हुर्रे द कप इज आवर्स, व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस विश या डिजायर शो कर विश या डिज़ायर शो करेंगे, और उसमें क्या होगा? विश या डिज़ायर शो करेंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं। विश या डिज़ायर शो करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग, मे यू विन द मैच, लाइक दीज स्टेटमेंट्स। ये क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या कर रही हैं? विश कर रही हैं या आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इस टाइप के सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं? तो अब पता है आपको कि मदर क्या कर रही है? ब्लेसिंग दे रही है। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। अगर विश होती है तो कह देते हैं मदर विश्ड मी, मदर विश्ड मी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसलिए मदर ब्लेस्ड मी। जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तब मैं सारे एक एक रूल बताऊंगी। अभी ये सिंगल पार्ट में मैं इन सभी के सिंगल वीडियोस बनाऊंगी, तब इसमें और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी मदर सेड टू को किस में चेंज किया? ब्लेस्ड में चेंज कर दिया। मी हमारा ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? दैट यूज़ किया है। यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किसका यूज़ होता है? दैट का यूज़ होता है। देन सेम फॉर्मूला, यू है यानी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी है ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में चल लगाना है। तो आई, मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आई माइट, देन लिव लॉन्ग। फॉर्म, वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा। आई माइट लिव लॉन्ग। देन द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतना समझ आया होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, some sudden feelings of minds, like joy, sorrow, like surprise, suspicion, like hate, applause। ये एंड वंडर। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या क्या शो करते हैं? जॉय, सोरो, सरप्राइज, सस्पिशन, हेट, अपलॉज एंड वंडर। दीज थिंग्स आर इज एक्सप्रेसिंग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शो करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने का क्या फॉर्मूला है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले सेड टू को चेंज करना होगा, या सेड जो होगा उसे चेंज करना होगा। और उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस इज नेहा सेड alas I am ruined। there are some sentences, this sentence is showing sorrow। what it is showing? it is showing sorrow। तो हम इसको कर देंगे exclaimed with sorrow। सेड को किस में चेंज करेंगे? exclaimed with sorrow, क्योंकि ये sorrow शो कर रहा है। क्लियर? अगर सेंटेंस में होता what a nice film it is, what a nice film it is, तो ये क्या कर रहा है? प्रेज कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेज कर रहा है, अप्लॉज कर रहा है। तो exclaimed with joy वी कैन से। ठीक है,
तो इस तरीके से सेंटेंस जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए उसकी द वेरी फर्स्ट वी कैन से हाउ कैन वी रिकग्नाइज इट. सो एक्सक्लेमेशन साइन लगा होगा उस सेंटेंस में, दैट इज एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को ऐसे पता चल जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये. अब देखिए सेंटेंस है नेहा सेड अलास आई एम रूइंड, यानी कि सोरो फील कर रही है, दुख जता रही है. तो कैसे चेंज करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देंगे. इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट का यूज़ कर देंगे. ओके, सिर्फ जो इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट कहाँ पे नहीं लिखते हैं, जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है वहाँ पे हम दैट नहीं लगाते हैं, बाकी हर सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं या इफ़ या वेदर लगाते हैं. तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट. अब अगेन आई जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, सॉरी आई हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट है हमारा नेहा यानी शी हो जाएगा, फीमेल जेंडर है. आई एम रोइंड, अब यहाँ पे ये क्या है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में कर देंगे इसको, शी वॉज रोइंड, शी वॉज रोइंड. क्लियर हो गया. सो ये क्या है, ये सेंटेंसेस के टाइप हैं. मैंने सिर्फ आपको आज ये बताया है कि नरेशन में कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और उसमें छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं कैसे कैसे चेंज किया जाता है, कि किस प्रोनाउन को किस में चेंज करना है या किस टेंस में किसको चेंज करना है, या बाकी जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस होते हैं, छोटे छोटे रूल होते हैं, उसको कैसे करना है, ये मैंने आज आपको बताया. सो I am going to end here my video. I hope you would like this video. I have told the initial things of the narration. In the next video I will start with the next things which are important for to learn this narration. So I hope you would like this video. That's it for today. I'll meet you very soon with a new video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.